These are the people who have made investment in the business organization. They purchases the shares or the stocks. That's why these are called as shareholders of the business organization. As far as the shareholders are concerned, they are the one who are the owners of the business organization. They are the main beneficiaries since they have made investment in the business organization. So they are the ones who are expected to receive the benefit from their investment in terms of the profit taking. And they are the ones who are actually bearing the risk. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि difference between stocks and the bonds. The lenders are not concerned with the loss suffered by the business organization. They do not share the losses of the business organization, but the owners do share the profit as well as the loss of the business organization. So they are the ones who are taking the risk. And these are the people who are actually the decision makers in the sense when the different, you can say, the projects or different proposals are presented in the board of directors meeting, shareholders basically vote for or against those decisions. So if they want to opt for that particular decision, they would vote for that particular decision. And if they do not want to go for that, they can vote against that particular decision. So regarding the selection of the board of directors, regarding the approval of the different activities that are to be taken up by the business organization in the future, the approval, the decision is basically done by the shareholders. Then there are different types of the shares. Any idea about these? What do you mean by ordinary shares and preference shares? The ordinary shares are the normal shares जो हम भी ले सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, and we do not enjoy that kind of उसमें जो है फिक्स नहीं मिलेगा. अगर if the company is in loss या कोई और है तो अकॉर्डिंगली हम भी होंगे. प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि मेरे ख्याल में उनको जो है कुछ प्रायोरिटी दी जाती है कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा और उसके अलावा जो होगा वो मिलेगा. अच्छा, उसमें एक तो ठीक है कि जनरली द शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू द general public or the different institutions, these shares are basically called as ordinary shares or the common shares. And the shares ये जी please. सर ये आई थिंक जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इनके पास राइट होता है कंपनी को वोट करने का भी प्रॉब्ली. जी बिल्कुल ठीक है. चले यहाँ पे उसका थोड़ा सा हम उसको डिफरेंस जो है ना वो स्पेसिफाई कर लेते हैं. कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. वन इज बेसिकली द वोटिंग पावर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ordinary shares holders and then there are preferred share holders. Ordinary shareholders, yes, they do have the voting right, whereas the preferred stockholders do not have the voting power. As far as the dividend is concerned, so in case of ordinary shares, the dividend rate of return is variable, whereas in case of preferred stockholders the rate of return is fixed. जैसे bonds में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, इसी तरीके से जो आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनका भी जो रेट ऑफ जो प्रॉफिट होता है या डिविडेंड होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है. कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रेफर्ड स्टॉक है जिसकी पार वैल्यू 100 है या फॉर एग्जांपल 100 है और उस पे जो डिविडेंड उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है दैट इज 6%. तो इट मींस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड per share that would be given to the shareholders would be basically 100 into 6%. So this is $6. Is it clear? So for every one share that is being held for the preferred stock, the shareholder would be paid a dividend of $6. तो जिसके पास 10 शेयर्स होंगे उसको कितना डिविडेंड दिया जाएगा? 600. 60 सर. $60. जिसके पास 1000 शेयर्स होंगे उसका डिविडेंड कितना हो जाएगा? $6,000. $6,000 देगा. तो सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स के साथ पर शेयर डिविडेंड मल्टीप्लाई कर देंगे. अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये पर शेयर आपके पास आ गया.
तो आपके पास एज एन इन्वेस्टर टोटल डिविडेंड आ जाएगा. Now, irrespective of the profit earned by the business organization, whether the business organization has earned higher profit or it has earned lower profit, the same amount of the dividend will be paid to each preferred stockholder. Whereas in case of the ordinary shares, the rate of the return would vary. It would vary based on the performance of the business organization. Maybe it would vary depending on the dividend policy of the business organization. Let's suppose if the company wants to reinvest that amount, so in that situation they would pay lesser dividends. But in a situation where the company wants to invest less and they want to share that amount more to the shareholders, the amount of dividend would increase. So out of the profit earned by the business organization, or depending on the dividend policy of the business organization, the rate of return may vary. Likewise, Yes, sir. there could be a possibility in which the tax situation of the particular country. Hanan, मैं आपका question जो है ना वो देखता हूँ जो है ना इसमें. For example, okay, sir. dividends taxable हैं या capital gain जो है ना वो taxable है. अगर dividend taxable है तो उस सूरत में जो shareholders हैं वो expect करेंगे कि उनको capital gain मिले, means share prices जो है ना वो increase हो जाए. और अगर इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस जो है, जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है, तो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस ये होगी कि उनको डिविडेंड जो है ना वो ज्यादा से मिले. इसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स विल बी प्रेफरिंग मोर ओवर द डिविडेंड्स जो है ना, कि उनको डिविडेंड मिल जाए, उनको रिटर्न मिले. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दे वुड लाइक कि कंपनी करें, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो. वैल्यू इंक्रीज होगी तो अल्टीमेट बेनिफिट जो है ना वो शेयर होल्डर्स को जो है ना वो ट्रांसफर होगा. इसके बाद है क्लेम ओवर डिविडेंड्स. तो क्लेम ओवर डिविडेंड्स में जो है दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैव अ रेजिडुअल क्लेम. मीन सबसे आखिर में किसको पे किया जाएगा? कॉमन स्टॉक होल्डर में. और ये जो है इनको प्रेफरेंस इन क्लेम होगी. इसको क्या किया जाएगा? पहले पे किया जाएगा. जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं इनको पहले पेमेंट होगी और बाकी जो बचेगा वो किसको दिया जाएगा? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को. उसकी एग्जांपल लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, मैं उसको दोबारा से आपसे शेयर कर देता हूं. फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी, ठीक है, वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. लेट्स सपोज द सिचुएशन इज लाइक दिस, दैट वी हैव द सेल्स. फ्रॉम सेल्स वी डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू गेट द gross profit. From this gross profit we deduct the selling and admin expenses to get the earning before interest and tax or operating profit. From this we deduct the interest expense to get earning before tax, and from earning before tax we deduct the tax expense to get the net income of the business organization or profit after tax. From this profit after tax, what we do, we pay the preferred dividend. और तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स. और इसमें से फिर हम क्या करेंगे? जो कॉमन डिविडेंड है इसको पे करेंगे. तो दिस वुड लीड अस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो लेट्स सपोज वी assume it like this, that the sales of the business organization are 1000. The cost of goods sold was, let's suppose, $600. So it's like this, sales less cost of goods sold, we get a gross profit of how much? 400. 400. It's, let's suppose the selling and admin expenses are 100. So we will get the earning before interest and tax of 300. Let's suppose the interest expense is 50. So we'll get the earning before interest and tax of 250. Let's suppose the tax expense is 40. We will get the net income or profit after tax equal to 210. Then out of this 210, we will pay the preferred dividend. Let's suppose the dividend per share was 6 and the total number of preferred stocks issued to the shareholders were 10, just for the sake of simplicity.
So the total preferred dividend would be $60. 60. If $60 dividend is paid, how much is left? 150. 150. Now this is the 110. profit which is available to the common stockholders. Out of this profit, the company would pay some dividend to the common stockholders, and remaining would be the retained earning for the business organization. Let's suppose the company decides that we will pay 40% of the profit as dividend to the common stockholders. So if this is 40%, so 40% of 90. 150 is, 60 this is again 60. और 90 रह जाएगा सर. So the retained earnings or the profit held by the business organization would be 90. So if you look at this, 90. who has preference in claim? The preferred stockholders. They would be paid first. And whatsoever that is left, that would be given to the common stockholders, so they have the residual claim. ये जो points हम discuss कर रहे थे. I hope it's clear now. Yes sir. I बट have सर a कई question, केसेस sir. में तो डेप्रिसिएशन भी होती है. डेप्रिसिएशन भी होती है, और इसका जो है ना और कम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट भी होता है. क्यों तंग करते हैं उन लोगों को जिनके इतना फाइनेंस की जो है ना वो चीजों में एक्सपर्टीज नहीं है. ठीक है. Sorry, sir. Sir, I have a question. सर इसमें से फिर वो नॉन कैश जो पेमेंट्स होती हैं वो भी हम इसमें से निकालेंगे, फिर ये तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. मैं वही बात कर इजी रहा रहेंगे. हूँ. देखें, इट्स जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट अबे यार, जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग कि जी प्रेफरेंस किस बेसिस के ऊपर है या रेजिडुअल क्लेम क्या होता है. If you go in the appropriate format, for example, if I talk about the cost of goods sold statement of a manufacturing business concern, तो मेरे ख्याल में 3 घंटे की क्लास तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के ऊपर ही जो है ना वो खत्म हो जानी है. Exactly. ऐसे ही है ना. ऐसे ही है सर. तो इसलिए इतना बहुत है, सर. समटाइम्स जे रिटेन अर्निंग जब मतलब कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड बिल्कुल नहीं भी देते तो जी. वो सारा रिटेन अर्निंग में रख लेते हैं, लेकिन सर उसके एवज ये लोग जो शेयर या स्टॉक की प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं ताकि कंपनसेट हो जाए शेयर होल्डर्स के साथ. तो सर वो किस बेसिस पर इंक्रीज करते हैं, ये खुद ही करते हैं या सर उसका भी कोई कॉमन प्रोसीजर है सर? नहीं, शेयर की प्राइसेस ऐसे नहीं इंक्रीज हो सकती. जनरली 2 तरीके से हैं. अब वो फिर एक थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन में चले जाएंगे. एक तो स्टॉक स्प्लिट वाली ऑप्शन जाती है, उसको भी हम नहीं डिस्कस करते जो है ना, वो टेक्निकली प्योर कि आप क्या कर सकते हैं. सर ये जो प्रेफर्ड शेयर्स और जिसका अगर इनका एक फिक्स रिटर्न होता है और इसी तरीके से सर बॉन्ड सिक्योर जो बॉन्ड्स होते हैं उनका भी फिक्स रिटर्न होता है, ये तो वन एंड द सेम चीज नहीं हो गई सर? अच्छा, गुड क्वेश्चन. जो है देखिए, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके ऊपर जो हम फिक्स रिटर्न दे रहे हैं वो हम इस कंडीशन पे दे रहे हैं कि irrespective of the fact that whether the company has earned profit or loss, उनको जो है वो पेमेंट होनी है. ठीक है. So that is basically the interest that is given to them. But in case of preferred stock, the profit will be given to them on this condition कि अगर कंपनी को उस साल प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से उनको एक फिक्स रिटर्न जो है वो देगी. अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस सूरत में उनको रिटर्न नहीं मिलेगी. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. जो नॉर्मली प्रॉफिट का या इंटरेस्ट का भी डिफरेंस होता है कि इन केस ऑफ इंटरेस्ट आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट्स अ कंपल्सरी लायबिलिटी जो आपने हर सूरत में जो है ना वो फुलफिल करनी है. बट इन केस ऑफ डिविडेंड्स इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट. तो अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड देगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस साल जो है वो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. सर अगर प्रॉफिट हमें हो रहा है तो प्रॉफिट डिविडेंड अगर है तो सर फर्स्ट हमें प्रेफर स्टॉक वही है सर जो हम प्रॉफिट सबसे पहले उनको देंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स में आएंगे हम. जी देखिए ना, इनका नाम प्रेफर्ड क्यों स्टॉक्स है कि दे हैव प्रेफरेंस. अब वो प्रेफरेंस किस चीज के, जैसे बाकी सारे आम लोग होते हैं, कुछ वीआईपी होते हैं. आप एयरपोर्ट पे ट्रेवल करते हैं तो एक आपका नॉर्मल जो है ना वो लाउंज है, एक वीआईपी लाउंज है. तो वीआईपी अच्छा. लाउंज का क्या मतलब है, कुछ लोगों को आपने एक स्पेशल प्रिविलेज दी है, कुछ प्रोटोकॉल दिया हुआ है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है. तो उस सिचुएशन के अंदर जो इनके पास जो मेन है प्रेफरेंस वो ये है कि जो डिविडेंड्स होंगे, मीन जब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्लेम किसका होगा, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का. और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको दिया जाएगा, बाकी तमाम शेयर होल्डर्स को. जैसे होता है ना घर में
जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा जो है ना वो लाडला होता है, तो जनरली उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर घर में कोई भी चीज जो है ना वो फादर लेके आए हैं तो सबसे पहले होता है जो छोटा है इसको दे दिया जाए जो है ना। खाना जब बन रहा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है जी कि वो माता कहती है कि जी कि सबसे पहले जो रोटी बनी है जो है ना छोटे को जो है ना वो दे दें, तो उसको जरा प्रेफरेंस दी जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसका लाड प्यार किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इनको जरा वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। दे हैव बीन गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर द स्टॉक होल्डर्स, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड कॉल्ड एज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। अब ये सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर। जी जी प्लीज। सर प्रेफरेंस किसी बेस पे तो देते होंगे ना सर, कि अगर मेरे पास 10 मिलियन शेयर्स हैं तो शायद इस वजह से मैं प्रेफर्ड हूँ। जिससे आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आपने अभी एग्जांपल दी थी, तो मेरे पास बिजनेस क्लब का कार्ड होगा। लेकिन अगर मैं परचून वाला आदमी हूँ तो मेरे पास नॉर्मल वाला होगा कि मैंने कभी साल में एक दफा बाहर जाना है। तो अभी अकील करीम डैडी जो है वो उसके पास प्रेफर्ड वो शेयर्स होंगे और हम जैसों के पास ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे। कोई बेसिस तो होगा ना सर उसकी प्रेफरेंस का? जी बेसिस ये होता है कि कंपनी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर जो है ना वो इशू करती है। एक वो है कि हेलो जी जी, एम आई ऑडिबल? इज इट द अमाउंट ऑफ द शेयर्स, नहीं, नंबर ऑफ द शेयर्स? no no no, this is not the amount of the share, this is the type of the share, ठीक है? राइट सर। This is not यानी उसके पास जी प्लैटिनम शेयर्स होंगे, हमारे पास सिल्वर शेयर्स होंगे, इस तरह की बात होती है जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ठीक है। अब राइट। क्वेश्चन ये है कि कंपनी ये क्यों इशू करेगी। तो अब देखें जो पहले वाला पॉइंट था उसके अंदर क्या था, वोटिंग पावर है और नहीं है। तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स है उनके पास वोटिंग पावर है, ऐसी बात है। जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स है इनके पास वोटिंग पावर नहीं है। अब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग रेज भी करना चाहती है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग के साथ साथ जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी वोटिंग पावर को भी डाइल्यूट नहीं होने देना चाहते। तो उसका एक बेहतर ऑप्शन क्या है कि इक्विटी फाइनेंसिंग इस तरीके से रेज करें कि फंड्स भी ऑनर से आ जाएं लेकिन उनका वोटिंग के अंदर कोई राइट नहीं हो। तो उस सूरत के अंदर कंपनी के लिए प्रेफरेबल है कि ऑर्डिनरी शेयर इशू करने की बजाय क्या कर दे, प्रेफरेंस शेयर को जो है इशू कर दे। So they will be sort of sleeping partners. They are kind of sleeping partners. They won't be affecting the board जो है ना वो decisions. They won't be participating in the annual general meeting जो है ना, but they are having some claim in the ownership. तो उस context के अंदर कंपनी के लिए प्रेफरेबल है कि इक्विटी फाइनेंसिंग भी रेज होगी और उस साइड से जो है ना वो कंपनी की जो है ना जो शेयर होल्डर्स है उनकी वोटिंग पावर जो है वो भी डाइल्यूट नहीं हुई, वो उसी तरह से जो है ना वो कंसंट्रेटेड रहेगी। अदरवाइज अगर वो ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं तो लेट्स सपोज पहले कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हुए थे, आपके पास 51% शेयर्स थे, मींस 51 शेयर थे, आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। लेकिन अगर कंपनी मजीद 100 शेयर इशू कर देती है और वो शेयर्स कोई और परचेज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली 200 में से जब आपके पास 51% शेयर 51 शेयर हैं तो इट इज जस्ट 26.5। तो आपकी वो जो मेजॉरिटी है वो कंप्रोमाइज होगी, आपकी जो ओवरऑल जो उसके ऊपर जो परसेंटेज की ओनरशिप की वो डाइल्यूट होगी। तो इफ द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डोंट वांट टू डाइल्यूट देयर ओनरशिप, दे हैव एन ऑप्शन अवेलेबल जिसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो उसकी जो मेजॉरिटी है उसको भी रिटेन रखें और इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू करें। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन थ्रू व्हिच द कंपनी कैन ड्यू टू व्हिच द कंपनी कैन ऑफर द प्रेफर्ड शेयर। इसी तरीके से जैसे क्लेम ओवर डिविडेंड्स है, इसी तरह क्लेम ओवर एसेट्स व्हेन द कंपनी वुड बी डाइल्यूटेड, ठीक है, अगर कंपनी वाइंड अप होगी, बैंकरप्ट होगी, तो अगेन जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं दे हैव द रेजिडुअल क्लेम। जब पेमेंट्स होंगी तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को सबसे जो है ना वो एंड पे पेमेंट होगी, और जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं दे हैव प्रेफरेंस over the common stockholders. अब वो कैसे है, वो इस तरह से है कि जब आपकी लिक्विडेशन होगी तो टेक्निकली एक लिक्विडेशन स्टेटमेंट बनती है। अगेन वो एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ एक आइडिया देता हूँ कि सबसे पहले आपके क्या होते हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट होगी, उसके बाद जो अनसिक्योर्ड, या इसको मैं इस तरह लिखता हूँ क्रेडिटर्स की बात, जो सिक्योर्ड लेंडर्स हैं
इनको पेमेंट होगी, उसके बाद जो अनसिक्योर्ड हैं इनको पेमेंट होगी, इसके बाद जो लिक्विडेटर का कमीशन है वो पे ऑफ होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं इनकी पेमेंट होगी, और सबसे एंड पे जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं इनकी पेमेंट। तो अब आप देखें कि ऑल्दो लेंडर्स का क्लेम फर्स्ट है, लेकिन जब शेयर होल्डर्स की बात आएगी या स्टॉक होल्डर्स की, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स वुड बी हैविंग अ प्रेफरेंस इन क्लेम। अगर इनको पे करने के बाद कंपनी के पास कुछ बच जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है जी। यस सर। So these are some of the difference between common and preferred stock holders. वो डिस्कशन में चीज आ रही थी तो हमने कहा कि चलें इसको भी डिस्कस करते हैं। So these are the two types of the share. इसके अलावा एक और टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। Any idea about these things? What do you mean by bonus shares? सर इन माय व्यू पॉइंट, जब आपको प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी जो है वो जायज के डिविडेंड दे, वो कुछ शेयर्स आपको दे देते हैं। आई थिंक दे आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। थोड़ी सी उसमें जो है ना वो बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बट लेकिन थोड़ा सा एक जो है ना वो चीज में डिविएशन है जी। एनीवन एल्स? व्हाट डू यू मीन? सर ये हर साल इस तरह होता है कि कंपनीज मिसल शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर किसी के पास 1000 शेयर है तो साल के एंड के ऊपर वो कंपनीज जो होती हैं उसमें से कुछ परसेंटेज शेयर्स जो वैसे ऑफर करती हैं, probably in the form of the profit to benefit the shareholders. मेरी अंडरस्टैंडिंग। सर व्हाट आई थिंक इज सर इसमें कंपनी शेयर्स वगैरह जो उनके पहले ही शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दे देती है इन रिटर्न, मतलब डिविडेंड के एवज, ताकि वो जो डिविडेंड है वो ना पे करे और उसकी जगह वो रिटेन अर्निंग कर ले। व्हाट आई थिंक इज आसान सर सर ये फुली पेड शेयर्स हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज देती है सर कंपनी सर अपने शेयर होल्डर्स को सर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये क्यों कंपनी इशू करती है जो है ना उसमें, ये चले उसको एक सिंपलीफाई कर लेते हैं मजीद। कंपनी जब डिविडेंड पे करती है सर ताकि डिविडेंड ना देना पड़े उनको। अच्छा, डिविडेंड ना देना पड़े। चले मुझे ये बताएं कि जनरली डिविडेंड किस फॉर्म में पे किया जाता है? सर वैसे तो यूजुअली तो कैश की फॉर्म में पे किया जाता है, लेकिन इस कैश की फॉर्म में सर। जी कैश की फॉर्म में बिल्कुल पे किया जाता है, बिल्कुल ठीक है जो है उसमें। अब अगर कंपनी कैश डिविडेंड नहीं पे करना चाहती तो फिर तो उसकी जगह सर ये क्या करती है, शेयर्स ऑफर कर देती है। उन शेयर्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर। ठीक है, तो जनरली द डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर्स, बट समटाइम instead of paying cash dividend, the company offers its shareholders the shares of the stocks. These shares are basically called as bonus shares. So you can call it as these shares are offered in lieu of the cash dividend that is paid to the shareholders. Cash dividend देने की बजाय कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स ऑफर कर देती है शेयर होल्डर्स को। ऐसे शेयर्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स। ठीक है जी, क्लियर है बात? अच्छा, इसी तरह से एक और टाइप ऑफ शेयर्स होती है जिनको बोला जाता है राइट शेयर्स। व्हाट डू मीन बाय दीस? व्हाट आर राइट शेयर्स? जिससे सर्टेन राइट्स एक्रू हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज हो सकती है। नहीं, उसने कोई राइट्स नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जो उसमें कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ के रिलेटेड बात है जो उसमें। सर अगर इन केस इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरीज के और के लिए और का अल्टरनेटिव सैलरीज ना दें जो उनका राइट है, और उसका अल्टरनेटिव शेयर्स, वो एक डिफरेंट चीज है जिसको हम ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ठीक है, कि वो एक में बात की थी ना एजेंसी थ्योरी की, कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर्स। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने का एक तरीकाकार क्या है कि जो एम्प्लॉइज हैं यू शुड आल्सो गिव देम अ पार्ट इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो वो कैसे दी जा सकती है, आप उनको शेयर्स ऑफर कर दें।
तो कंपनीज क्या करती हैं, स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ना वो ऑफर करती हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग बोनसेस, पर्क्स एंड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, दे गिव देम द शेयर इन द ओनरशिप। तो उसका फायदा क्या होगा कि प्रीवियसली दे वर थिंकिंग देमसेल्व्स एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो स्लॉथ का एलिमेंट था कि दे वर अनविलिंग टू टेक रिस्क, दे वर अनविलिंग टू safeguard the interest of the shareholders, क्योंकि preference different थी। Now when they have also become a part of the owner, they are also the owners of the business organization, now they would be taking care of the interest of the other shareholders, क्योंकि अब अगर डिविडेंड ज्यादा होगा तो इनको भी डिविडेंड मिलेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो एज है ना ऑनर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनकी भी जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स ESOPs जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं। राइट शेयर मींस कि whenever new shares are offered, initially the existing shareholders are offered to purchase the shares. The newly offered shares. Why? Because these are the people who have made investment in the business organization. So since they are the ones who have already made investment in the business organization, so they have the right that if the new shares are being offered, तो किसी और के परचेज करने की बजाय वो शेयर्स कौन परचेज कर लें, ये परचेज कर लें। अब उसके दो बेनिफिट्स इनको होंगे, एक तो जो इनकी ऑनरशिप है वो बिजनेस के अंदर और इंक्रीज हो जाएगी, अगर इंक्रीज नहीं होती तो एटलीस्ट जो परसेंटेज है उसको वो क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। Secondly, जो चीज है, when these right shares are offered, these are offered at a price which is lower than the market value. So let's suppose जो existing जो कंपनी के शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, कंपनी ने ये शेयर्स जो है ना वो ऑफर कर दिए 20 के हिसाब से जो है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो अब उनके पास बेनिफिट ये है कि उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 30 है, they have acquired it on at 20 rupees. So per share उनके पास ये advantage है that if they want to sell in the market, they can gain a profit of 10 rupees जो है उसमें. And if they want to hold that, obviously they can retain or maintain their percentage, or even they can increase their percentage of ownership. जी अमृत साहब। सर ये जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब आप ऑफर करते हैं ये वाले शेयर जो और कंपनी ऑफर करेगी जी, तो क्या उसके अंदर कोई उनकी ऑलरेडी जो शेयर होल्डिंग प्रोपोर्शन है कहीं उसको भी कैटर किया जाएगा, और दे आर ओपन टू परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर जो कि ओपन वो कर देगी? अच्छा, वेरी गुड जो है ना उसमें। अब जब ये राइट शेयर ऑफर करते हैं तो ये कंपनी के ऊपर डिस्कशन के ऊपर होती है कि किस परसेंटेज से वो ऑफर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल द पॉलिसी कुड बी 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, 1:1 है कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर और ऑफर कर दे जो है उसमें। इट कुड बी 2:1 कि फॉर 2 shares would be offered for every 1 share held by the owner or the existing shareholder, or it could be 1:2 that for every 2 shares held by any person, he or she would be offered to purchase 1 more share. So it varies, it's not always equal to the number or the percentage of shares held by the existing shareholder. It may vary depending on the situation or the company's policy. तो कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन वो इस तरह से होता है कि 1:1 हो जाए, 2:1 हो जाए, 3:1 हो जाए, 1:3 हो जाए, इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना वो किया जाता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो है ना वो ऑनरशिप उनको ऑफर कर दी जाती है बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग शेयर। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज। सर ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनीज या ये यूनिलीवर वगैरह, ये अपने एम्प्लॉइज को आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड 5 साल आपकी गुड सर्विस के ऊपर आपको शेयर्स दे देती हैं, विच आर मैच्योर्ड आफ्टर लेट्स से 4 years 5 years स्पेन, और वो विदाउट कॉस्ट देती हैं। वो किस कैटेगरी में आएंगे सर? वो बोनस शेयर्स होंगे या राइट शेयर्स होंगे? ना वो बोनस शेयर्स है ना वो राइट शेयर्स है। अभी जो मैंने एक चीज डिस्कस की थी ना, ESOPs, ठीक है, या ESOP, दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, एम्प्लॉय स्टॉक सर, ठीक है, वो इसमें फॉल इन करता है कि आपके पास डिफरेंट जो है ना वो एम्प्लॉयज की जो है वो ऑनरशिप प्लान्स आपके पास अवेलेबल होते हैं।
कि just to make a part, just to feel themselves as a part of the honor of part of the business ownership, you offer them the shares. राइट शेयर्स में भी नहीं है, बोनस शेयर्स में भी नहीं है, वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। बोनस Right, शेयर thank वो है जो हम कैश डिविडेंड देने की बजाय शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। राइट शेयर में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। अब अगर उन एम्प्लॉइज के पास ऑलरेडी कोई शेयर नहीं है, ये कंपनी पॉलिसी है कि कंपनी उनको जो है ना वो शेयर देती है, तो दिस वुड फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ स्टॉक। राइट, ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ सर एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर ये जो शेयर्स की वैल्यू जो है सर, ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से डिटरमिन होती है या कोई और फैक्टर्स भी इसमें होते हैं? बिकॉज कई दफा होता है कि बैंकिंग सेक्टर से कंपनीज बेहतर परफॉर्म शायद कर रही हैं, तो उनका शेयर ऊपर जा रहा है, ये अक्सर हम देखते रहते हैं स्टॉक में सर, कुछ नीचे आ जाते हैं सर। एक कोई सिंगल फैक्टर उस स्टॉक प्राइस को नहीं इफेक्ट कर रहा, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें कुछ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं जो कि उसको इफेक्ट कर रहे हैं, और कुछ मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरे टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर तो ये है कि कंपनी की पॉलिसीज है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड पॉलिसी है कि कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी की करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी की जो है जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं वो बड़ी अच्छी हैं, गवर्नेंस उसकी अच्छी है, तो ये सारे फैक्टर्स लीड करेंगे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। उसकी वजह से डिमांड फॉर शेयर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। But likewise, along with these microeconomic factors, there are certain macroeconomic factors which are also affecting the share pricing. For example, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिलीफ दिया है, इसी तरह स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर वो टैक्स रिलीफ दे देती है, या कैपिटल गेन टैक्स को जो है ना वो मिनिमाइज कर देती है, या रेवेन्यू गेन टैक्स को जो है ना वो कम कर देती है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट आ गया। या इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, उसके अंदर कंपनी जो गवर्नमेंट है पॉलिसी रिलैक्स कर देती है, तो वो फैक्टर इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, तो देखें एज एन इन्वेस्टर आपके पास ऑप्शन क्या थी कि वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दें। अब अगर बैंक से भी आपको रिटर्न 10% मिल रही है और बाय एंड लार्ज स्टॉक मार्केट भी आपको 10% दे रही है, तो सिंस स्टॉक मार्केट इज अ रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, तो रैशनल डिसीजन ये है कि पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दें। लेकिन आजकल जिस आपने प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट देखे अराउंड 7% आ गया है, तो अब अगर बैंक आपको 7% ऑफर कर रहा है, स्टॉक मार्केट से ऑन एवरेज रिटर्न 12% आ रही है, तो बहुत सारे रिस्क टेकर जो होंगे, रिस्क सीकर्स होंगे, वो इन्वेस्टमेंट बैंक में करने की बजाय कहाँ पे करेंगे, स्टॉक मार्केट में कर देंगे। या गवर्नमेंट जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर अपनी पॉलिसीज को रेगुलेट करती है, या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर स्टेगनेंसी आती है, तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो उस पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट होते हैं, और उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से वो जो बाइंग और सेलिंग होती है उसकी वजह से शेयर प्राइसेस जो है ना वो इफेक्ट हो रही होती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट, तो कोई एक सिंगल रीजन नहीं है जो इफेक्ट करता है, मल्टीपल हैं। कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल इफेक्ट करती है, और उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो है ना उसको स्टॉक मार्केट को कर रहे होते हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी, एक और चीज है, वी आर जस्ट कंक्लूडिंग दिस सेशन एंड दिस वुड बी द लास्ट सेशन, विद इन अ मिनट इंशाल्लाह वी विल वाइंड अप। तो व्हाट इज अ ट्रेजरी स्टॉक? ये ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? सर पढ़े में लेकिन जहन में अभी नहीं आ रहा। अच्छा, लेट मी रिमाइंड। ठीक है। कंपनी अपने ही इशूड शेयर्स को जो बाय बैक करती है, उन शेयर्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, ट्रेजरी स्टॉक कहा जाता है। जनरली कंपनी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती कि अपने शेयर्स को बाय बैक कर ले, बट एट एनी टाइम द कंपनी फील्स दैट दे हैव इशूड मोर शेयर्स देन देयर रिक्वायरमेंट, या कंपनी अननेसेसरी जो है बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, या डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में कंपनी क्या कर सकती है, अपने जो इशू किए हुए शेयर्स हैं उनको बाय बैक कर सकती है। तो दो शेयर विच आर रीपरचेज्ड बाय द कंपनी फॉर कैंसलेशन पर्पस, these shares are basically called as treasury stock.
वैसे वर्ड जो ट्रेजरी है ये गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी नोट्स वगैरह हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब ट्रेजरी का वर्ड आएगा, ट्रेजरी स्टॉक का, तो इट मींस दो शेयर व्हिच आर रीपरचेज्ड बाय द कॉर्पोरेशन फॉर कैंसिलेशन पर्पस। ठीक है जी। ये वाला सर जो एग्जैक्टली सर, ये वाली टर्म जो आपने बताई है सर, ट्रेजरी स्टॉक वाली, जी जी, ये कंपनी अगर बाय बैक करती है तो वो एज पर प्लान जो है वो अपने स्टॉक की वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए करती है, और